Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well with preparation. In this video, we'll discuss the daily topic-wise news analysis, where we cover the news from two important sources, that is the Hindu and Indian Express. इन दोनों न्यूज़पेपर से जो भी important news है उसको discuss करेंगे. So let's get started. So these are the topics that I'll be discussing with you. Today is 26th of August. So the first topic is 17th India-Vietnam Joint Commission meeting. This is an important meeting that has held between India and Vietnam, and it is equally important when the relationship with China is not good. Now the second topic is RBI annual report in 2019-20. Some of the important findings have been provided from the RBI. The third topic is demand for the 6th schedule status to the Arunachal Pradesh, a long demand which is pending. Now the fourth topic is National Clean Air Program report and the NGT action. So NGT has taken the cognizance of the report by the National Clean Air Program that was being published by the Ministry of Environment and Forest. So this is also an important news. And the last topic is elderly people challenge during the pandemic. So these are the total article news that has been reported in today's newspaper and important for you. Apart from this, we'll have some MCQs question and the explanation of yesterday question. तो कल के जो सवाल थे उसके explanation भी मैं आपको आज बताऊंगा. तो वीडियो के अंत तक बने रहें. And we are announcing an all India mock test series for 2020. So the upcoming prelims which is scheduled, उससे पहले आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी. बिफोर द यूपीएससी जज यू नीड टू जज योर सेल्फ. सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज ऑन 30th of August. The timing would be from 11 AM. And these are the benefits that would be available for the top 50 students. You will get some free mains guidance. Some of the copy evaluation would be free of cost, right? So you can check the details in the description of this video, जहाँ पे मैंने इसके लिंक दिए हुए हैं. आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो. Now the first topics from the Indian Express, 17th Indian-Vietnam Joint Commission meeting. So this is very important news from the prelims perspective. पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं. और अगर मेंस की बात करें तो डायरेक्टली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2, राइट, वेयर देयर इज अ इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट इज कंसर्न. टॉपिक नंबर 17 है आपके जीएस पेपर 2 में. तो जिस तरह से चाइना के साथ रिलेशनशिप चल रही है अभी इंडिया की, उस चीज़ को देखते हुए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया और वियतनाम ने एक एग्री किया है कि वी विल हैव अ इन्हांस बायलैटरल कोऑपरेशन. अपनी जो बायलैटरल कोऑपरेशन है इंडिया और वियतनाम के बीच में उसको बढ़ाई जाएगी. एंड दिस वुड बी ऑन द इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, जिसको IPOIB कहते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको ध्यानपूर्वक समझें. एंड द एशियन आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक टू अचीव द शेयर्ड सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ. तो दो इनिशिएटिव्स पे इंडिया और वियतनाम काम कर रहे हैं. पहला दैट इज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एंड दूसरा इज आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक. So these are the two important basically platform or a benchmark where India and Vietnam is trying to accelerate or expand their relationship. Now बात करें इंडिया और वियतनाम की, दैट की फोकसेस ऑन द comprehensive strategic partnership, जहाँ पे ये इंश्योर करने की कोशिश है कि पीस, सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में इंश्योर की जा सके, राइट. नो जो मीटिंग हुई थी, जो 17th मीटिंग हुई है, उसके क्या क्या एजेंडा है, बिकॉज दिस एजेंडा वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मेंस में कोई सवाल आए तो आपको एजेंडा लिखना होगा, राइट. तो रिव्यू की गई कि किस तरह से जो इंडिया वियतनाम की जो कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसके क्या फ्यूचर ट्रेजेक्ट्रीज होंगे, किस तरह से जो इंगेजमेंट है उसको और वाइड किया जा सकता है, उसके दायरे को और बढ़ाया जा सकता है. Now the second was to have a new momentum on the economic and defense engagement, because it is very important. आप किसी भी एक कंट्री के साथ सिर्फ इकोनॉमी कोलैबोरेशन बढ़ा करके you cannot have a good relationship. Defense engagement is very important. Like country like Israel, Vietnam, they have got some of the good defense equipments, right? फिर उसके बाद जो तीसरी मीटिंग एजेंडा थी, दैट वाज अ क्लोज कोऑपरेशन इन एरियाज सच एज सिविल न्यूक्लियर एनर्जी. उसके बाद स्पेस, मैरिन साइंस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, इन पे भी काफ़ी बात हुई है. बहुत सारे MOU साइन करने की भी बात की गई. नाउ इंडिया हैज़ हाईलाइटेड इट्स विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारत को लेके कल भी हमने एक न्यूज़ बताया था आपको, जहाँ पे 108 डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया खुद मैन्युफैक्चर्स करेगी. तो इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने कहा कि वी वुड बी इन्हांसिंग द कोऑपरेशन
through self-resilience, human-centric globalization on the basis of India's economic revival, right? Now, both countries have agreed to set up the cooperation and coordination to improve the regional forum under the ASEAN framework. So these were some of the important agendas of the 17th meeting. इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग पे बात की गई है कि किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग में इंडिया असिस्ट करेगा वियतनाम को। तो इंडिया ने रीअफर्म किया है कि जो डेवलपमेंट है और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वियतनाम में उसको बढ़ाई जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स है जिसको QIPs भी कहते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर जिसको ITEC भी कहा जाता है, एंड इसके लिए भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो PhD के फेलोशिप्स कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो वियतनाम की मेकोंग डेल्टा रीजन है, SDG, डिजिटल कनेक्टिविटी और heritage conservation, because Vietnam is a country which is very culturally rich and they have got some good monuments, worldwide उनके जो monuments है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इन पे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है। Another MOU, that is a memorandum of understanding, has been signed in the cooperation between the सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज। ये IFS ऑफिसर्स जो होते हैं हमारे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स, उनके लिए ट्रेनिंग है। इससे पहले इनका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज था। 2000 बेसिकली फरवरी 2020 में इसके नाम को चेंज कर दिया गया आफ्टर द डिमाइस ऑफ द सुषमा स्वराज। To give her a tribute, the name of the institute was changed. Now it is सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन सर्विसेज, न्यू दिल्ली में बेस्ड है ये। तो और जो डिप्लोमेटिक एकेडमी ऑफ वियतनाम है, हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम, तो उनके साथ कोलैबोरेशन की गई है ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंट बनाया जाए। Now the other topic, this is from the Hindu. RBI ने अपने एनुअल रिपोर्ट्स जारी किए हैं 1920 के लिए। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई है, किस तरह से एक सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई है RBI की तरफ से। RBI हैज़ एडमिटेड कि बहुत सारी लूप होल्स हैं, बहुत जगह पे काम करने की ज़रूरत है, then only the economy can revive, right? So it is important for your general studies paper 3 in the mains examination, and some points here and there might be important for the prelims examination. So recently, as I've told you from the clip, it is understood that the report has been released from the RBI, and in this report, assessment and prospects, जिसकी टाइटल है, RBI ने वार्न किया है कि जो डाउन शिफ्ट है ऑफ द आउटपुट हुई है पोस्ट पेंडेमिक के बाद। बहुत ज़्यादा सारे सेक्टर्स में गिरावट देखी गई है। चाहे वो मैं आपको MSME के बारे में बताऊं, वी हैव बीन रेगुलरली डिस्कसिंग अबाउट द MSME एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन। MSME है जो छोटे सेक्टर्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखी गई है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉशन की जो इंडिया की पोटेंशियल है आउटपुट को लेकर के, दे में अंडरगो अ स्ट्रक्चरल डाउन शिफ्ट फॉलोइंग द पेंडेमिक। तो ओवरऑल सिर्फ नॉट ओनली द MSME, अगर मैं कोर सेक्टर की भी बात करूं, सो कोर सेक्टर हैज़ बीन ऑल्सो ह्यूजली इम्पैक्टेड। तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की जो कि आपको कोट करने में मेंस एग्जामिनेशन में मदद करेगी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग केस ऑफ डीप सेटेड रिफॉर्म की ज़रूरत है, जहाँ पे जो लॉसेस हुए हैं उसको एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ पे लाया जा सकेगा। फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड टू टेक ऑल प्रिकॉशनरी मेजर इन अ सस्टेनेबल मैनर, राइट। बहुत ही हॉलिस्टिक रोड मैप बनाने की ज़रूरत है ताकि सारे सेक्टर्स पे ध्यान देते हुए काम की जाए। Now the pandemic will inflict the deep disfiguration of the world economy. World economy में भी सिर्फ ऐसा नहीं है only India is suffering, entire world is suffering from the pandemic. उसके अलावा कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें इंडिया के कंसर्न को लेकर के अगर बात करें तो जो फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ है ऑफ इंडियन हाउस होल्ड वो ड्रॉप्ड हुई है काफ़ी ज़्यादा। और इस केस में एक और जो बुरी खबर ये है कि जो बैंक फ्रॉड्स हैं वो डबल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इस तरह के काम के लिए जहाँ पे उनको आराम से पैसे मिल सके। सो जो फ्रॉड्स हैं, जो बैंक फ्रॉड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो आपके पास भी अगर कोई इस तरह के कॉल्स आते हैं, कोई मैसेजेस आते हैं जहाँ पे आपके CVV नंबर, बैंक के किसी भी डिटेल्स को मांगा जाता है, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप उसको कुछ भी ना बताएं और ऐसी चीज़ों को अपने डिस्ट्रिक्ट या साइबर पुलिसिंग को रिपोर्ट करें और लोगों को भी जागरूक करें इसके बारे में। नाउ द इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस की अगर बात करें, सो दिस वुड बी नीडेड टू रीगेन द पोटेंशियल आउटपुट। जो रिटर्न है इकोनॉमी में, पाथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल ग्रोथ, मैक्रो इकोनॉमिक और फिनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों पे काम करने की बात है। और इकोनॉमी रिवाइवल की अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पे सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती है, सरकार क्या करती है, फिजिकल पॉलिसी बनाती है, राइट। जो फिजिकल पॉलिसी, दिस इज फ्रॉम द गवर्नमेंट, दिस इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। बट टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, दिस इज डन बाय आरबीआई। तो दोनों के साथ मिल के एक तालमेल के साथ काम करने की ज़रूरत है ताकि इकोनॉमी को वापस उसी पेस पे लाया जा सके। Now the other topic is demand for the sixth schedule status to the अरुणाचल प्रदेश। मैंने इस आर्टिकल को काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, आपकी जितने भी कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, तो उसको आप पूरा देखें। जो सिक्स शेड्यूल को लेकर के बातें हैं, और ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पॉलिटी के लिए और जनरल स्टडीज़ में पेपर 2 के लिए, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने डिसाइड किया है कि दे वुड अपील फॉर द सेंटर टू ब्रिंग द सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अरुणाचल प्रदेश है उसको सिक्स शेड्यूल के अंदर लाया जाए, क्योंकि जो इंडिजिनस पीपल हैं उनको उनके राइट्स के लिए प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये आर्ग्यूमेंट दी गई है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के प्रदेश की तरफ से। नाउ रेजोल्यूशन है वो मूव की जाएगी इन डिस्कशन विद द मानसून सेशन। अभी जो मानसून सेशन आने वाली है 27 अगस्त में, वहाँ पे ये सेंटर को ये अपने प्रपोजल है उसको भी सबमिट करेंगे। करंटली अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो वो ना ही 5th शेड्यूल के अंदर आती है ना ही 6th शेड्यूल के अंदर आती है, राइट। एंड इट इज़ अंडर द इनर लाइन परमिट। जो अरुणाचल प्रदेश है वो ILP के अंदर है। अब ILP क्या है? ILP की अगर बात करें तो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, एक परमिशन है जो अलाउ करती है किसी भी बाहर सिटीजन को उस स्टेट में एंटर करने के लिए, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट ली गई थी, बेसिकली इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से इंटरसेप्ट किया गया था। द वेस्ट बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के थ्रू जो हमारी इनर परमिट लाइट है, दैट हैज़ बीन कम इनटू द एक्शन। उसके बाद ही चीज़ें एग्जीक्यूट हुई है। तो ये ब्रिटिश की एक बेसिकली आप रूल्स बोल सकते हो। And this is an obligatory for all those people who reside outside the protected area। ऐसे लोग जो कि ILP के बाहर रहते हैं, सपोज दिस इज द ILP रीजन, इससे जो भी लोग बाहर रहते हैं उनको ILP में आने के लिए they need to have permission, right? And it can be issued for the travel purpose solely। सिर्फ ट्रैवल पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ILP में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। इफ़ यू नो, डू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कितने लोगों को पता है कि इनर लैंड परमिट में कौन कौन से स्टेट्स हैं भी। नाउ सिक्स शेड्यूल की अगर बात करें तो सिक्स शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करती है फॉर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये इंश्योर करती है कि वहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। एक स्पेशल प्रोविजन बनाई गई है आर्टिकल 244 और 275 के अंदर, राइट। जो सिक्स शेड्यूल है दैट रिमेन विद इन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। वहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो स्टेट की चलती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। ना ट्राइबल एरिया की अगर बात करें जो सिक्स शेड्यूल में होगी, सो दैट वुड बी कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जो ADC बनते हैं और जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी अपनी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी होती है विद इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इक्वली आप बोल सकते हो कि उनका लोकल रिप्रेजेंटेशन होता है और उनका जो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज मोर टुवर्ड्स द स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। उसके अलावा आर्टिकल 371H क्या है, ये कई बार आपके PT के लिए पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये स्टेट को, गवर्नर को एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है विथ रिस्पेक्ट टू द लॉ इन ऑर्डर इन द स्टेट एंड डिस्चार्ज द फंक्शन विद दिस रिलेशंस, राइट। तो एक स्पेशल पावर दिया गया है गवर्नर को। ना क्यों बात की जा रही है कि जो सिक्स शेड्यूल है उसको, उसमें अरुणाचल प्रदेश को इंक्लूड किया जाए, क्यों ऐसे डिमांड है? सो द फर्स्ट, वाइल एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन की, दैट एक्सटेंड टू द शेड्यूल एरिया विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द 5th शेड्यूल, जो 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं। और जो 6th शेड्यूल के जो एरियाज होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, दैट इज अंडर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, राइट। 5th शेड्यूल के अंदर कुछ कुछ जो क्रिएशन की जाती है, जैसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, TAC, जिसको टैक भी कहते हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। और 6th शेड्यूल के अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं एंड रीजनल काउंसिल बनाई जाती है, ताकि जो लेजिस्लेटिव है, जुडिशियल पावर है, उसको सस्टेन किया जा सके, इम्पार्ट किया जा सके। Now, many political parties they have been demanding for the inclusion of Arunachal Pradesh into the 6th schedule for making जो अरुणाचलीज है, जो वहाँ के लोग हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को being protected only, right? So कोशिश ये की गई है कि एक रिप्रेजेंटेशन हो, वहाँ के जो लोकल इंडिजिनस लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके अंडर
Schedule 6 of the Constitution. Now the other topic is National Clean Air Program report and the NGT action. So this is again important for your prelims examination. और अगर बात करें मेंस एग्जामिनेशन की तो कुछ कुछ पॉइंट आपके जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए इन्वायरमेंट सेक्शन से इंपॉर्टेंट है. तो रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो एनजीटी है उन्होंने स्लैम किया है. दे हैव स्लैम्ड नेशनल जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उनको फटकार लगाई है और ये कहा है कि जो आपने रिपोर्ट दिया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के थ्रू, जहाँ पे आपने बताया कि 20 to 30% रिडक्शन की गई है एयर पॉल्यूशन में, की जाएगी 2024 तक और सरकार कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल गलत है. सो यू नो दे हैव टेकन द रिपोर्ट और इसको एनजीटी ने काफ़ी ही सीरियसली लिया. मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या बातें कही गई हैं. तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के जो स्टैंड है उन्होंने डिसअप्रूव किया इस तरह के सबमिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने दिया है कि 20 to 30% पॉल्यूशन रिडक्शन की जाएगी और ये बहुत रियलिस्टिक बताई गई है, जो कि एनजीटी ने बोला है इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है. एंड एनजीटी सेड कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इज व्यू अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ द आर्टिकल 21, जहाँ पे राइट टू क्लीन एयर स्टूड टू बी द रिकॉग्नाइज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. तो राइट टू जो 21 है, आर्टिकल 21 है, वो राइट टू लाइफ है. तो राइट टू लाइफ के अंदर इट इज़ कि यू हैव टू हैव अ राइट टू क्लीन एयर. ठीक है, एयर पॉल्यूशन वॉज डिक्लाइन अंडर द राइट टू लाइफ. तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ. Now it is not clear as to what the monitoring mechanism would be enforced. किस तरह से इस चीज़ों को इन्फोर्स की जाएगी, इसकी जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अफेयर्स के जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उनकी तरफ से पूरी चीज़ें क्लियर नहीं है, ऐसा कहना है एनजीटी का. राइट, so this is the NGT has taken the cognizance of it. Now there's no data to show how much pollution has been reduced in the last 2 years. पिछले 2 सालों में कितनी पॉल्यूशन कम हुई है इसके लिए भी कोई डाटा मिनिस्ट्री ने नहीं दिया है. और जो एनजीटी की जो बेंच है, आप एनजीटी के बारे में पढ़ लें, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में. एनजीटी पे यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछे हुए हैं. सो इन्होंने कहा है कि दे हैव ऑल्सो सेट कि जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं, जो एनएसीज हैं, उसको कवर करने के लिए एक स्टैंडर्ड और कंसेक्यूटिवली 5 ईयर के प्लान्स जो हैं वो भी नहीं है. तो ये सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को. व्हाट आर द टारगेट्स, क्या टारगेट्स रखे गए थे? अगर बात करें नेशनल क्लीन जो एनर्जी एयर प्रोग्राम है NCAP, यहाँ पे टारगेट थी कि जो 10 years डाउन द लाइन जो रिड्यूस करने की बात की गई अप टू 35%. ठीक है, ऑन द फर्स्ट 3 years एंड फर्दर रिडक्शन इन द पॉपुलेशन लेटर, जो पॉल्यूशन है उसको ग्रेजुअली हर साल कम करने की जो टारगेट है उसकी बढ़ाई जाएगी. नाउ कमिंग टू द मीन 10 year पॉपुलेशन वुड रिमेन अंडर एड्रेस. देयर वाज टू लॉन्ग पीरियड टू टॉलरेटिंग द वायलेशन ऑफ द एयर एंड राइट टू लाइफ. बट जो टारगेट्स थी उसको मीट नहीं किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से. एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट क्लियर कि व्हाट टाइप ऑफ जो पॉल्यूशंस हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो क्या रिड्यूस हुए हैं. ना तो मिनिस्ट्री के पास कोई डेटा है, ना तो कोई ऐसे फिगर हैं जिसमें ये बताया जा सके कि किस लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स कितने कम हुए हैं या कहाँ पे आपने काम किया है. राइट, तो एनजीटी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसके पीछे क्या जवाब दिया? दे हैव टोल्ड कि जो ट्राइब्यूनल की एक्सेस एंड द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी इंटरवेंशन ऑन क्वालिटी लेवल, बेसिकली मिड लेवल पे जो आइडेंटिफाई है, एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियन है वो लिए जाएंगे अगर ये ज़रूरत पड़ती. तो इन्होंने कुछ गोल मटोल सी बातें कही हैं. दे हैव नॉट गिवन द कंक्रीट रिपोर्ट बट वेरी सून अदर मिनिस्ट्री वुड ऑल्सो गेट इन्वॉल्व. और एनजीटी अगर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, बेसिकली एनजीटी को खुद में पावर है कि वो मांग सके, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर आती है तो फिर मिनिस्ट्री को जवाब देना होगा अटॉर्नी जनरल के थ्रू. राइट, नाउ द लास्ट टॉपिक इज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. एल्डरली पीपल चैलेंज ड्यूरिंग द पेंडेमिक. दिस इज रिटन बाय अरुण मारिया. इन्होंने कुछ एल्डरली पीपल पेंडेमिक के टाइम में जिनको प्रॉब्लम हुई है और किस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में एक रोड मैप बताने की कोशिश की है. ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 एथिक्स के पेपर में केस स्टडीज़ के तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है. राइट, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़रूर देखें. ग्लोबली जो पॉपुलेशन है दैट हैज़ एज्ड 65 एंड ओवर ग्रोइंग फास्टर देन द अदर एज ग्रुप. ये ऐसी एज ग्रुप है जो किसी एज ग्रुप से सबसे ज़्यादा बढ़ रही है. राइट, एंड मोस्ट वनरेबल पीपल आर ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक आर एल्डरली. सबसे ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम है, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, जिनके डेथ के चांसेस है, वो है एल्डरली पीपल अबव 65 ईयर ऑफ द एज. 2018 की
अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसा हुआ कि पीपल एज 65 और अबव आर आउट नंबर द चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं उनसे भी ज़्यादा नंबर 65 ईयर एज के लोगों का है। एंड ओल्डरली पीपल वांट टू ऐड मोर लाइफ। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके जीवन में, उनके लाइफ में कुछ और क्वालिटी लाइफ इंक्लूड किया जाए, ना कि सिर्फ ईयर्स को इंक्लूड किया जाए, राइट। तो पेंडेमिक हैज़ हाईलाइटेड द टेंशन बिटवीन कीपिंग द ओल्ड पीपल सेफ एंड कीपिंग देम वेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पावर ऑफ कम्युनिटीज़ कोलैबोरेशन की अगर बात करें, जो इस एडिटोरियल में डिस्कस है कि किस तरह से कोलैबोरेशन करके कम्युनिटीज़ के साथ इस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो व्हाट हैव लर्न कि पेंडेमिक इज़ अ लोकल सिस्टम सॉल्यूशन, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की जाती है कम्युनिटीज़ की तरफ से, और एक जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है थ्रू कम्युनिटीज़। कैसे की गई है, अगर मैं आपको केरला के एग्जांपल बताऊं तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया था जहां पे लोकल कोलैबोरेशन की गई थी, एंड इट हैज सीम्स टू बी वर्क बेटर कंपेयर टू द एनी अदर सिटीज़। तो कम्युनिटीज़ अंडरस्टैंड करती है उनके कैपेबिलिटीज़ को, किस तरह से उनके जो ज़रूरतें हैं उनको समझना कुछ एक्सपर्ट के साथ। सो दिस इज समथिंग हाउ द थिंग्स टेक प्लेस। कोलैबोरेशन ऑन द ग्राउंड has enabled many communities to prevent the spread of pandemic and take care of their need of the members, right? या फिर कोई ग्रुप बनाया जाए जहाँ पे एक कम्युनिटी हो, स्पेशली फॉर द एल्डरली पीपल, एंड दे कैन हैव एन ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, या फिर उनको कैसे रहना है, किस तरह से कोलैबोरेट करना है, इंगेजमेंट कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें कम्युनिटी कोलैबोरेशन से की जा सकती हैं। एक वियतनाम का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा जो कि इस एडिटोरियल में भी डिस्कस है। वियतनाम ने सर्वाइवल के लिए क्या किया, पेंडेमिक से लोगों को बचाने के लिए, जो एल्डरली एज पीपल हैं उनके लिए उन्होंने वन रीज़न दिया है कि स्ट्रेंथन फॉर द ओल्डर पेंशन एसोसिएशन बनाया, राइट, जो कि इंडिया में इस तरह की है नहीं अभी। एक ओल्डर पेंशन एसोसिएशन बनाई गई है, मूवमेंट लगाया गया विच वुड बी गवर्निंग द सपोर्ट फॉर मेनी ईयर्स। और इस चीज़ को जो वियतनाम की गवर्नमेंट ने उसने पूरी तरह से सपोर्ट किया है, सारे डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है पूरे कंट्री में। एंड दे हैव एडेड यंगर मेंबर्स, जो युवक हैं, जो युवा अवस्था के लोग हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि इस चीज़ को और ट्रांसफॉर्म किया जा सके और इंटर जनरेशनल सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई जा सके। सो दिस इज़ द पावर ऑफ द कोलैबोरेशन। अगर कोई भी केस स्टडी के सवाल आते हैं आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में, तो इस तरह के पॉइंट आप वहाँ पे इंक्लूड कर पाएंगे। और कंक्लूजन की अगर बात करें तो ज़रूरी है कि एक सोशल कोहेशन हो और सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, राइट। एक सोशल कोहेशन बनाया जा सके, लोगों को डिस्टेंस ना किया जा सके, कम्युनिटीज़ में एक ह्यूमैनिटी इम्पार्ट करने की ज़रूरत है ताकि इस पेंडेमिक से ह्यूमन लाइफ को सेव किया जा सके, राइट। अब बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ। कल के जो सवाल थे उसके मैं करेक्ट आंसर्स और आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, that the Brahmo Samaj has issued widow remarriage on the high agenda and did much to popularize it. और जो second statement है वो भी correct है। पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर was the principal of the Sanskrit College at Calcutta that Hindu Widow Remarriage Act of 1956 legalized the marriage of the widows, declared issues such as marriage to be legitimate, passed by the government. और विद्यासागर cited Vedic texts to prove the Hindu religious sex in the विडो रिमैरिज, राइट। इसके सोर्सेज मॉडर्न इंडिया क्लास 12 जो है बिपिन चंद्रा की बुक है उससे ली गई है, आप डिटेल में वहाँ पे पढ़ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 2, द करेक्ट ऑप्शन इज अगेन सी हियर। द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्ली ह्यूमन लाइफ, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स हैबिट, देयर डेली एक्टिविटीज, अंडरस्टैंड देयर माइंड। और जो स्टेटमेंट अगेन 2 इज ऑल्सो करेक्ट, that the prehistoric period remain a great witness to the evolution of human civilization through numerous weapons, tool and ceramic and bones. So this is again from the NCERT class 11th. Now let's move to our MCQs question of the day. So the first question is from the Indian economy. Consider the following statement. Which among the following is the merits and demerits of the currency swaps agreements? So the agreement aims to bring the greater stability in the capital market, and it helped to reduce the foreign exchange and the interest rate risk. So you have to tell which among the following is the correct option: A, B, C and D. So do participate, write your answer in the comment section down below. Now coming to the second question from the Indian polity, you have to consider the statement regarding the amendment of the constitution. It can be initiated only in introduction of the bill in the either house of the parliament, and the amendment can be introduced by a minister only with the prior permission of the president.
So you have to choose the correct option. If you have read Lakshmikant, it would be very easy for you to answer this question. So just let me know how many of you have read the NCERT and the Lakshmikant, so that you can easily answer this question and write your answer in the comment section, right? And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to hit the like button on this video. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.